Welcome dear student. This lecture is based on phylum Mollusca. After Arthropoda, we had to discuss phylum Mollusca. Arthropoda was the most successful phylum having largest number of animals, and just followed to Arthropoda we have second largest one, Mollusca. This phylum include animals having soft body, that is their typical feature, and these animals are either free living, or they may be sedentary animals. These animals are marine, okay, and may be benthonic as well as pelagic. Benthonic means bottom dwelling animals. Pelagic are free floating animals. Okay, bottom dwellers. Most of the members are bottom dwellers, but some are pelagic, free floating animals. These animals shows presence of three prominent structures in their body. Their body is completely divisible into three prominent parts, that is head, visceral mass and foot. Muscular foot they wear. So head, visceral mass and foot, that is their division of, we can say, body parts. The body is divided into three different prominent features: head, visceral mass and foot. So these animals shows presence of mantle, that is the fold of protective skin coating, we can say. All the major vital organs are situated within that mantle. So presence of mantle, a special skin coating, muscular fold, we can say. It is muscular fold, okay, and that mantle cover all the vital organs, and that mantle secrete calcareous shell for protection, and that shell may be external, may be internal, or may be sometime missing. कभी वो शेल बाहर की तरफ होगा, कभी अंदर की तरफ होगा, या हो सकता है वो मिसिंग हो. Some members are there which do not bear any shell. So mostly these are shelled animals, and that shell कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ प्रोटेक्टिव शेल उनका प्रोटेक्शन करता है, लेकिन उससे उनका सिमेट्री डिस्टॉर्ट हो सकता है ड्यू टू टॉर्शन, ट्विस्टिंग ऑफ, वी कैन से, शेल फॉर्मेशन. तो ये एनिमल्स जो होते हैं वैसे तो बायलैटरली सिमेट्रिक होते हैं. Bilaterally symmetric. These animals are bilaterally symmetrical initially, but some are asymmetric. Due to what? Due to simply torsion. Due to torsion in their body, they are asymmetric. So you should remember that basically these animals are bilateral, okay, but due to torsion, due to twisting, they may be asymmetric. Some members like phyla, we can say, they are asymmetric, okay. Then their body features are typically important, and we have to discuss one by one. Very important characters. So let's think about their different systems, okay. How do they locomote? So their locomotory system, their locomotion occurs due to the foot. Muscular foot are there. Ventrally to the body, they bear foot, and that foot helps in locomotion, burrowing, swimming, okay. Multiple activities are carried out by their foot, so they are going to help in walking. इससे वो walk भी कर सकते हैं, right? इससे वो swim भी कर सकते हैं, swimming. Similarly, इससे वो burrow भी कर सकते हैं, burrowing, okay. Walking means simply creeping. They creep on the ground. तो ये सब कुछ पॉसिबल है उनके मस्क्यूलर फुट के हेल्प से, ओके. दैट इज पॉसिबल. सो लोकोमोशन. देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक, ओके, और इसको समझते हैं. सो दीज एनिमल्स बेसिकली फीड ऑन प्लांट एंड एनिमल डेरिवेटिव्स, ठीक है. जो भी रिमेनिंग मैटर होगा या बचा हुआ जो कंटेंट इन तक पहुंचेगा वही इनका फूड है. So they depend on animal and plant matter they use for their feeding.
तो उनका जो फूड है डाइट सप्लीमेंट वो एनिमल प्लांट डेरिवेटिव्स होते हैं। सिंपली उनका डाइजेस्टिव ट्रैक ये पूरी तरह कंप्लीट होता है। ओके, दैट्स हाउ वी कैन से these animals are bilaterally symmetric and shows tube within a tube body plan, tube within a tube body plan। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, it means they show presence of complete digestive system, they are perfectly coelomic, they are eucoelomic animals। ठीक है, वो eucoelomic होते हैं, यहाँ आप लिख सकते हो। ठीक है, you can mention eucoelomic animals। So their digestive tract is complete डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसका मतलब है उसमें माउथ है एक एंड पे, दूसरे एंड पे एनस होता है। इन गैस्ट्रोपोड्स, इसमें एक कैटेगरी है गैस्ट्रोपोड्स जिसमें इनका एलिमेंटरी कैनाल पूरी तरह से ट्विस्टिंग दिखाता है और वो यू शेप हो जाता है। दैट्स हाउ माउथ एंड एनस आर पोजीशन साइड बाय साइड। तो इस तरह का उनका डाइजेस्टिव ट्रैक हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ माउथ और एनस ये साइड बाय साइड ओपन होते हैं। सो दैट इज एंट्री साइड, दैट इज एग्जिट साइड, माउथ एंड एनस। सो दैट इज द ट्विस्टिंग ऑफ देयर एलिमेंटरी कैनाल। तो आप कह सकते हो इनमें गैस्ट्रोपोड्स में यू शेप्ड आपको एलिमेंटरी कैनाल मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक ये यू शेप मिलता है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स लाइक गैस्ट्रोपोड्स वी कैन से। तो इन एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है काफी डेवलप्ड है। ये प्लांट और एनिमल डेरिवेटिव्स पे फीड करते हैं और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में यू शेप ट्रैक आपको मिल सकता है। सो दैट माउथ इज प्लेस्ड जस्ट बिसाइड एनस। एनस और माउथ दोनों इस तरह आसपास ही रहते हैं ड्यू टू सच ट्विस्टिंग और फोल्डिंग इन द एलिमेंटरी कैनाल। सो लेट्स थिंक अबाउट देयर रेस्पिरेशन। तो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये दो टाइप का होता है एक्चुअली। ठीक है, जब ये पानी में होते हैं तो इनका रेस्पिरेशन टेनिडियल कहलाता है। टेनिडियल रेस्पिरेशन मीन्स बाय गिल्स। तो इनका जो विसरल मास है और उसके ऊपर एक कवरिंग है मेंटल। ठीक है, उन दोनों के बीच में कैविटी होती है, तो उस विसरल कैविटी में इनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, गिल्स आर प्रेजेंट इन दैट कैविटी जस्ट बिलो द मेंटल। तो ये टेनिडियल गिल रेस्पिरेशन करते हैं, उसी तरह ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं पल्मोनरी। ओके, दे डू बी लंग्स, और ये लंग्स से भी रेस्पायर कर सकते हैं लैंड सरफेस लाइक स्नेल्स वगैरह आपको पता है। तो ये टेनिडियल रेस्पिरेशन करते हैं गिल से, और ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं बाय देयर लंग्स। तो दो टाइप का रेस्पिरेशन काफी स्पेशल इसमें है, आप देख सकते हो। देन जस्ट थिंक अबाउट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देखिए इनका सर्कुलेशन पूरी तरह ओपन सिस्टम है। ओके, सो देयर सर्कुलेशन इज ऑफ ओपन टाइप। सर्कुलेशन सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। ब्लड फ्लोज इन साइनसेस मींस ओपन। ठीक है, और इनमें हीमोसाइनिन पिगमेंट आपको मिलेगा। हीमोसाइनिन पिगमेंट बना होता है कॉपर से, और इसीलिए थोड़ा ब्लूइश टिंज उसमें हो सकता है in the blood as it is made up of hemocyanin, right? Hemocyanin, not hemoglobin। तो इनका आप देख सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, सिंपल टाइप का है, इसमें हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है विद कॉपर टिंज। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो अबाउट देयर स्पेशल फीचर्स, राइट, इनके पास कुछ सेंसर्स भी पाए जाते हैं नर्वस सिस्टम में। समझते हैं इस चीज को। नर्वस सिस्टम जो होता है इनका गैंग्लियोनेटेड होता है। ओके, बॉडी के जो तीन पार्ट्स है, हेड, विसरल मास और फुट। ओके, फुट तो मस्कुलर वॉकिंग के, क्रिपिंग के काम आते हैं। विसरल मास में सारे ऑर्गन्स है, सारे सिस्टम्स लॉज्ड होते हैं। हेड में ब्रेन होता है, कुछ सेंसरी पार्ट्स होते हैं लाइक आईज एंड टेंटिकल्स। ओके, ये सब हेड रीजन से एसोसिएट चीजें हैं। तो नर्वस सिस्टम में आप लिख सकते हो ये गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम होता है, और 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लियंस यहाँ पे प्रोमिनेंटली मिलेंगे। जो हेड रीजन में होते हैं उसको आप क्या कहोगे, कौन से टाइप के गैंग्लियंस कहोगे। ठीक, आप समझ लो कि बॉडी के जो 3 मेजर पार्ट है, ठीक है ना, उन 3 मेजर पार्ट्स में 3 मेजर टाइप के गैंग्लियंस होते हैं ऑफ कोर्स। तो ये होते हैं सेरेब्रल गैंग्लियन। ठीक है, सेरेब्रल गैंग्लियन। दूसरा यहाँ पे होता है विसरल गैंग्लियन, और तीसरा यहाँ पे होता है पेडल गैंग्लियन। ठीक है, या फिर गैंग्लिया। गैंग्लिया मीन्स प्लूरल। सो सेरेब्रल गैंग्लिया, पेयर्ड गैंग्लिया।
उसके बाद विसरल मास में होते हैं विसरल गैंग्लिया, और उनके पैरों में फुट में होते हैं पेडल गैंग्लिया। ओके, सो दैट इज एसोसिएटेड ब्रेन टू दैट पार्ट। तो इस तरह का यहाँ पे आप कह सकते हो सेपरेशन हो गया है, और हर पार्ट में अपना खुद का इंडिपेंडेंट एक कंट्रोलिंग सेंटर वहां पे रखा गया है। ये पेडल गैंग्लिया, विसरल गैंग्लिया और सेरेब्रल गैंग्लिया, ये सब नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ सेंसर्स, सेंसरी स्ट्रक्चर्स, राइट। तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स की अगर बात हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आइज प्लस टेंटैकल्स। ठीक है, यहाँ पे आइज और टेंटैकल्स होते हैं जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स माने गए हैं, और इनके पास होते हैं कुछ खास रिसेप्टर्स, ऑस्ट्रेडिया। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास? ऑस्ट्रेडिया। और ये ऑस्ट्रेडिया ये वाटर क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। दे कैन टेस्ट वाटर क्वालिटी, वाटर का प्यूरिफिकेशन वो चेक कर सकते हैं। तो उनके पास खास टाइप के रिसेप्टर्स है, दैट इज ऑस्ट्रेडिया, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड वाटर करंट एज वेल। तो काफी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेडिया। उसी तरह स्पेशल फीचर में इनके बक्कल कैविटी में अगर आप देखो तो खास टाइप का रास्पिंग स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम है रेडियोला। ओके, सो दे शोज प्रेजेंस ऑफ रेडियोला एज अ रास्पिंग ऑर्गन, राइट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे समझने के लिए, ये है रास्पिंग ऑर्गन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इसी में होते हैं ट्रांसवर्स सेट्स ऑफ रोज, आप कह सकते हो यहाँ पे टीथ का होता है, राइट। तो रेडियोला में अरेंजमेंट होती है ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ। ठीक है, तो ये रेडियोला एक रास्पिंग स्ट्रक्चर है जो इनके बक्कल कैविटी में होता है, और उसमें एसोसिएट होते हैं ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ, जो काफी इंपॉर्टेंट है इन फीडिंग पर्पस। तो हमने देखा इनका डाइजेशन, इनका सर्कुलेशन, इनका रेस्पिरेशन और नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करो तो यहाँ पे पहली बार टिपिकल किडनी जैसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको ऑर्गन ऑफ बुजानस कहा जाता है। ठीक है, किडनी को क्या नाम दिया है? ऑर्गन ऑफ बुजानस। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है, टर्म है, ये आपने समझ लेनी है। ऑर्गन ऑफ बुजानस फाउंड इन ऑफ कोर्स मोलस्कियंस। ठीक है, जो मोलस्कियंस होते हैं बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट एनिमल्स है, और इनमें किडनी भी मिली है फर्स्ट एवर, दैट इज ऑर्गन ऑफ बुजानस। समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देन वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव फीचर्स, reproductive system. So these animals show sexual dimorphism, sexes are separate. ठीक है, sexes कहते हो कैसे होते हैं? separate sexes होते हैं। they reproduce sexually, their reproduction sexual होता है, sexual reproduction of course। और यहाँ पे ये oviparous होते हैं animals, egg lay करते हैं oviparous, right। इनका fertilization internal होता है, internal fertilization, okay। और इन केस में डेवलपमेंट जो होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप की आपको मिलेगी। इन सम केसेस देयर आर लार्वल स्टेजेस, इन सम देयर आर नो लार्वल स्टेजेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये आप इसमें देख सकते हो इन मोलस्का। ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। सो दीज आर सो सिंपल सोबर एनिमल्स। इनमें सर्कुलेशन पूरी तरह ओपन सिस्टम है, बट सेपिया एक ऐसा मेंबर है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलता है, सेपिया। You should remember the exception, okay? Let me write some important examples here so that you can get idea about the phylum. इसमें आपको स्क्विड मिलेंगे, ठीक है, इसमें आपको स्नेल मिलेंगे, इसमें आपको ऑक्टोपस मिलते हैं, डेविल फिश जिसको आप कहते हो, ठीक है ना। इसी तरह कुछ मेंबर जैसे कि पाइला, ओके, और साथ में आप लिख सकते हो अलग अलग टाइप के बाइवल्व्स इसमें आ जाते हैं, और ऑयस्टर जिससे कि आपको मिल जाते हैं पोल्स, oysters. Okay, so oyster, squid, snail, octopus, phyla, bivalve, okay, sepia, right, all these are the members of phylum mollusca. तो mollusca को एक्सप्लेन करना काफी सिंपल है, और इनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन काफी स्ट्रांग होता है, सुपर एग लेइंग एबिलिटी में होती है, जैसे कि ऑयस्टर मिलियंस ऑफ एग ले करते हैं, ठीक है, स्पॉनिंग में। और ये एक डिलीशियस फूड होता है फॉर अदर एनिमल्स। तो रेस्ट ऑफ द एनिमल्स जो आपको एक्वेटिक मीडिया में मिलते हैं, मरीन वाटर में मिलते हैं, ठीक है, ये मोस्टली मरीन एनिमल्स है, तो इनको एज अ फूड यूज किया जाता है बाय अदर एनिमल्स ऑफ कोर्स। सो दैट्स हाउ दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड चेन ऑफ एक्वेटिक मीडिया
ये सबका फूड है, लेकिन इनका भी फूड कुछ होता है, वो है प्लांट और एनिमल मैटर डेरिवेटिव्स। हमने इस चीज को समझ लिया है। So as a whole, we can say mollusca are extraordinary members of water ecosystem, and they are specially characterized by their shell, their special body having head, visceral mass, and foot for locomotion. Okay, and they show presence of mantle covering special over their visceral mass, and they show prominent systems in their body with open circulation. They show some exceptional features like sepia having closed circulatory system. Okay, and similarly they show hemocyanin in their blood which make them little bit bluish। कॉपर होता है उसमें इस तरह। किडनी भी मिली ऑर्गन ऑफ बुजेनस, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी टिपिकली इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि रेस्पिरेशन टेनेडियल बाय गिल्स होता है या फिर बाय लंग्स, उसको आप कह सकते हो पल्मोनरी। ठीक है, तो वैसे तो सिमेट्री बायलैटरल है, बट जिसमें शिल होता है तो समटाइम वो सिमेट्री टॉर्शन की वजह से asymmetric हो जाती है, just like phyla। okay, so hope you get idea about the phylum mollusca। इसको वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए और समझ लो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ phylum mollusca, the second largest phylum after arthropoda। okay, thanks for watching।